الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زيبتان يطوقوه يوم القيامة ثم يأخذ بالحزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستو، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام عظیم شان میں فرماتے ہیں، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے دولت عطا فرمائی، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زیرلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زیرلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ سفید نقطے ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائے وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے، پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں قریب یہی مضمون نقطوں کے معمولی فرق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی روایت سے بھی مروی ہے۔ قرآن و حدیث میں خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہے، ان اعمال اور ان کی جزاؤں اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس کا سمجھنا ہم جیسے عوام کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ ایسی دقیق اور خفی مناسبت ہوتی ہے جس کو صرف خواص عرفاء امت کے کیا
ही समझ सकते हैं। और इस हदीस में ज़कात न अदा के गुनाह की जो ख़ास सज़ा बयान हुई है, यानी इस दौलत का एक ज़ीरेले नाक की शक्ल में इसके गले में लपेट जाना। क़यामत और जन्नत, दोज़ख के अज़ाब और सवाब के बारे में जो उसूली बातें मारिफुल हदीस जिल्द नंबर 1 में लिखी जा चुकी है, जिन हज़रात की नज़र से ना गुज़री हो वो इनका ज़रूर मुताला करे। इन चीज़ों के बारे में जो ज़हनी उलझने बहुत सौ के खलजियाँ का बाइस बनती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुबारका से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक फरमाते थे कि माल ज़कात जब दूसरे माल में मखलूत होगा तो ज़रूर इसको तबाह कर देगा। इमाम हमीदी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी सनद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अन्हुन्ना अजमईन मुबारका की ये रिवायत नकल करके इसका मतलब ये बयान किया है कि अगर किसी आदमी पर ज़कात वाजिब हो और वो इसको अदा ना करे तो बेबरकती है, इसका बाकी माल भी तबाह हो जाएगा। और इमाम बकी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में इमाम अहमद इब्ने अनबल रहमतुल्लाह अलैह की सनद से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अन्हुन्ना अजमईन मुबारका की यही रिवायत नकल करके लिखा है कि इमाम अहमद हनबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब और मिस्दाक ये है कि अगर एक गनी आदमी जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है गलत तरीके पर ज़कात वसूल कर ले तो ये ज़कात इसके बाकी माल में शामिल होकर इसको भी तबाह कर देगा। राकी में सतूर अर्ज़ करता है कि हदीस के अल्फाज में इन दोनों तशरीहों की गुंजाइश है और इन दोनों में कोई तनाकुज़ और मनाफ़ात भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक की रिवायत के कि जब सूरह तौबा की ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानी लयअकुलूना अमवालन नासि बिलबातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला यनक़ुदूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि, आयत नंबर सूरत 35 आखिर तक, जिसका तर्जुमा ये है, और जो लोग सोना चांदनी वगैरह माल दौलत बतौर ज़ख़ीरे के जमा करते हैं और जोड़ते रहते हैं, इसको खुदा ताला जल्ल जलालहू की राह में खर्च नहीं करते, तो ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक आप इन परस्तारों परस्तारान दौलत को आखिरत के दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यह अज़ाब उन्हें इस दिन होगा जिस दिन के इनकी जमा करदा दौलत को आग में तपाया जाएगा, फिर इससे इनके माथे, इनके पहलू और इनकी पेटें दागी हो जाएंगी और इनसे कहा जाएगा कि ये है तुम्हारी वो दौलत जिसको तुमने अपने लिए जोड़ा था और ज़ख़ीरा किया था, बस मज़ा चखो तुम अपनी दौलत अंदोज़ी का। तो जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें ज़ख़ीरे के तौर पर माल व दौलत जमा करने वालों के लिए आखिरत के सख्त दर्दनाक अज़ाब की वईद है, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मुबारक पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ा और वो बड़ी फिक्र में पड़ गए। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ने कहा, मैं तुम्हारी इस फ़िक्र और परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। चुनांचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक के पास गए और अर्ज़ किया कि हज़रत आपके असहाब पर इस आयत का बड़ा बोझ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़कात तो इसीलिए फ़र्ज़ की है कि इसकी अदायगी के बाद जो माल बाकी रह जाए वो पाक हो जाए, और इसी तरह मीरास का कानून इसलिए मुकर्रर किया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक कहते हैं कि यहाँ एक कलमा
आपने कहा था जो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मीरास के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया था कि मीरास का कानून इसीलिए मुकर्रर किया गया कि तुम्हारे पसमानदगान के लिए सहारा हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक का ये जवाब सुनकर खुशी में कहा अल्लाहु अकबर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक से फरमाया, मैं तुमको वो बेहतरीन दौलत बताऊं जो इसकी मुस्तहिक है कि इसको हासिल किया जाए और कदर के साथ रखा जाए। वो नेक खसलत और सालिह ज़िंदगी वाली रफ़ीक़ा हयात है जिसको आदमी देखे तो रूह और दिल खुश हो और इससे किसी काम को कहे तो वो इताअत करे और इसको अंजाम दे, और जब शोहर कहीं बाहर जाए तो इसकी आदम मौजूदगी में इसके घर बार और अमानत की हिफाजत करे। सुनाने अबी दाऊद की रिवायत थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे और आपके आज का बयान जो है वो इसी जगह पे इख्तिताम पज़ीर पे पहुँच गया है। इंशाअल्लाह कल से इंशाअल्लाह हम और ज़कात के बाद ज़कात के तफ़सीली अहकाम व ज़वाबित बताएँगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।